کہ ہم اپنی زندگی میں کس طرح تازگی کو، کس طرح بحالی کو، کس طرح سرفرازی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آمین۔ خدا کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال نئے عہد نامہ میں سے 3 باب اور اس کی 19ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ Book of Acts and chapter number 3 and verse 19۔ اعمال کی کتاب، رسولوں کے اعمال 3 باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے وہ بائبل مقدس کو کھولیں، میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ لکھا ہے، پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور اس طرح خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے۔ دوبارہ پڑھیں گے۔ لکھا ہے، پس توبہ کرو۔ کیا لکھا ہے؟ توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خداوند کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ اور آج ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ تازگی۔ تازگی کیسے آئے گی؟ تازگی کا مطلب کیا ہے؟ بحالی۔ تازگی کا مطلب ہے تر و تازہ، سرسبز و شاداب۔ تازگی جو ہے وہ ہریالی کو، زندگی کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر آپ بازار میں جائیں سبزی لینے تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ تازہ سبزی لیں، جو سرسبز و شاداب ہو، جو اچھا آپ کو نظر آئے۔ فروٹ جو ہے وہ تازہ آپ لیں گے۔ ہر ایک چیز جو ہے آپ فریش پسند کرتے ہیں۔ لیکن اپنی زندگیاں، اپنی لائف کے اندر جو برکات ہیں، اپنی زندگی میں جو سیکھنے کا عمل ہے، اس میں ہم تازگی کو، اس میں ہم اچھی جو بہترین چیز ہے اس کو چوز نہیں کرتے۔ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ ہر روز تازگی سے بھرا ہوا کلام ہونا چاہیے۔ ہر روز تازہ کلام خداوند سے مانگنا چاہیے، کیونکہ جیسے خدا کا تازہ کلام ہوگا ویسے ہماری زندگی، روحانی زندگی بھی تر و تازہ ہوگی۔ آمین۔ کیونکہ خدا کا کلام ہمیں تازہ کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں تر و تازہ کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں بحال کرتا ہے۔ تو تازگی حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں ہیں۔ تازگی زندگی میں حاصل کرنے کے لیے، زندگی میں بحالی حاصل کرنے کے لیے 2 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی کیا چیز ہے؟ توبہ کریں۔ کیا لکھا ہے؟ پس توبہ کرو، اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور آسمان سے خداوند کی حضوری سے تازگی کے دن آئے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ایلیاہ نبی بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ کو جا کر کہتا ہے، بادشاہ جب تک میں نہ کہوں اس ملک میں نہ میਂہ برسے گا، نہ بارش ہوگی، زمین پر میਂہ نہیں برسے گا، کیونکہ خدا کے خادم نے یہ بول دیا۔ اور ایسا ہی ہوا، 3.5 سال اس ملک میں، اس جگہ پر میਂہ نہ برسا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب میਂہ نہیں برستا تو کیا ہوتا ہے؟ ہر طرف ویرانی ہوتی ہے، درخت مرجھا جاتے ہیں، فصلیں جو ہے وہ مرجھا جاتی ہیں، پھل نہیں ملتا، اناج نہیں ملتا، اور پانی نہیں ہوگا تب انسان پیاسا مرے گا۔ بارش نہیں ہوگی تو زمین جو ہے وہ بنجر ہو جائے گی، ہر طرف جو ہے وہ ویرانی اور سنسانی ہو جائے گی۔ اور کلام میں لکھا ہے ابتدا میں بھی ایسا تھا، زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ کیوں اندھیرا تھا؟ کیوں ویرانی تھی؟ کیونکہ ابھی تک خدا کا کلام نازل نہیں ہوا تھا۔ اور لکھا ہے خدا نے کلام کیا، خدا نے کہا زمین پر پانی ہو،
खुदा ने कहा जमीन पर हवा हो। जैसे जैसे खुदा कलाम करता गया वैसे वैसे चीजें तख्लीक होना शुरू हो गई। खुदा ने कलाम किया कि जमीन पर फसलें हो जाए, खुदा ने कलाम किया जमीन पर जो है दरख्त उगना शुरू हो जाए, और खुदा ने कलाम किया आसमान पर फिजा में परिंदे हो जाए। खुदा ने कहा समुंदर के अंदर मछलियां और बहुत ज्यादा कसरत के साथ हो जाए। हर एक चीज तब क्रिएट हुई, तब बनी जब खुदावंद ने कलाम किया। पहले जमीन वीरान और सुनसान थी। जब खुदावंद कलाम करता है तब जिंदगियां तरोताजा होती हैं। आमीन। हमारी जिंदगियां खुदावंद को कबूल करने से पहले वीरान और सुनसान होती हैं, लेकिन जैसे खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में नाजिल होता है हमारी जिंदगियों को वो सरसब्ज और शादाब कर देता है। आमीन। तो पहली चीज क्या है? तौबा करनी है। क्या करनी है? तौबा करनी है। और खुदा ने एलिया को उस मुल्क में भेजा और एलिया ने कहा जब तक मैं ना कहूं आसमान से मींह नहीं बरसेगा। और जब 3.5 साल पूरे हो गए और खुदा ने एलिया को वापस उस जगह पर भेजा और खुदा के बादशाह के पास जब हो गया है तो बादशाह के सामने जाकर खड़ा हो गया है। और बादशाह ने जब उसकी अकड़ टूटी है, जब बादशाह ने तौबा की है, तब खुदा के बंदा ने कहा और आसमान से बारिश हुई है और उस मुल्क में दोबारा से बहाली आई है। और एलिया जो है वो घुटनों के बल हो गया और उसने अपना मुंह जो है अपनी टांगों में किया और दुआ करना शुरू की। और जब उसने दुआ की आसमान पर से एक छोटा सा बादल नजर आया और आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पर बारिश होना शुरू हुई। आमीन। जब खुदा के लोग उसके जो खादबीन हैं, उसके जो बेटे बेटियां हैं, जो उसके जो फर्जंद है, जो उसके नाम से कहलाते हैं, खाकसर बनकर दुआ करते हैं, तो खुदा कौमों को, खुदा मुल्कों को बहाल करता है। और वहां ऐसा ही हुआ है, खुदा का बंदा एलिया झुक गया और खुदा ने उस मुल्क को बहाल किया और उनके गुनाह को मुआफ किया। और इधर इस जगह पर जो लफ्ज है तौबा, तौबा का मतलब यही है कि खुदावंद के हुजूर अपने गुनाह का इकरार कर लेना, मान लेना और दोबारा उस गुनाह की तरफ मुंह ना करना, उससे मुंह फेर लेना और खुदा की तरफ रजू करना। दूसरा पॉइंट क्या है? पहला क्या था? हमने गुनाहों से तौबा करनी है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है? रजू लाना है। क्या करना है? रजू लाने का मतलब क्या है? इंग्लिश में इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो है कन्वर्टेड। क्या यूज किया गया है? कन्वर्टेड, यानी बदल जाना। अगर आपने तौबा कर लिया, अगर आपने अपने गुनाहों को छोड़ दिया है तो उसके बाद बदल जाना है। अगर आपकी जिंदगी पहले गुनाह में थी तो उसके बाद पाकीज़गी में होनी चाहिए। अगर आप पहले नशा करते थे उसके बाद नशा छोड़ना है और बदल जाना है और खुदावंद की हुजूरी में वक्त गुजारना है। खुदा के खादिम एक जगह पर कलाम सुना रहे थे। वो कहते एक जगह पर मैं बपतिस्मे दे रहा, तो उस जगह पर चर्च के जो हौज बनाया हुआ था, एक जगह पर वहाँ से किसी लड़का, एक छोटा सा था, उसकी एज तकरीबन 16 साल होगी, तो वो पागल था। और वहाँ के जो पादी साहब हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। और वो लड़का कहता कि मुझे बपतिस्मा दे, मुझे नहीं पता मुझे बपतिस्मा लेना है। वो जिद करना शुरू कर दिया। पादी साहब ने कहा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और मैं क्यों एक पागल को बपतिस्मा दूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि एक पागल को बपतिस्मा दे दिया। लेकिन वहाँ का पादरी भी कहने लगा अगर ये खुद कह रहा है, अगर ये जिद कर रहा है तो इसको बपतिस्मा दे दे। और पादी साहब ने क्या किया, उनकी बात मान के उस पागल को बपतिस्मा दे दिया। और क्या हुआ है, जब पादी साहब वापस गए कराची अपने शहर में, तो उस पास्टर ने गवाही दी कि ये जो पागल था बपतिस्मा लेने के बाद ठीक हो गया। पहले वो दरबारों में जाता था और उस वजह से वो पागल हो गया था, लेकिन अब वो खुदावंद के घर की जान नहीं छोड़ता, खुदा के घर में रहता है, उसके घर में खुदावंद की प्रस्तिश करता है, खुदावंद के नाम को जलाल देता है। यानी तौबा करने से आपकी जिंदगी जो है, चाहे आपका मेंटली लेवल ठीक नहीं है, खुदावंद के ज़ुर में जब आप तौबा करते हैं खुदा सब कुछ ठीक कर देता है। आमीन। तौबा करो और रज्जू लाओ। रज्जू का मतलब है बदल जाना, रज्जू का मतलब है खुदावंद के पास वापस
वापस आना, खुदाबंद के साथ लिपट जाना, उसकी हजूरी के मुतलाशी होना, उसकी हजूरी में वक्त गुजारना। और खुदा का कलाम फरमाता है मुसरफ बेटा अपने बाप को छोड़कर चला गया, और जैसे वो छोड़ के गया है, जब उसका सारा मालो दौलत खत्म हो गया तो वहां पर वो मरने लगा भूखा। वीरानी आ गई कि नहीं उसकी जिंदगी में? उसकी जिंदगी में एक तरह से कहत आ गया कि नहीं? उसकी जिंदगी वीरान होने लगी, मरने लगा। फिर उसको अपने बाप की याद आई, और बाप के पास जब वो वापस आया है, जब वो बाप के पास वापस आया है और अपने आप को बदला है, बाप ने जब उसको गले लगाया है, उसकी जिंदगी दोबारा से बाप ने चेंज कर दी है। आमीन। उसकी जिंदगी में जो वीरानी थी उसके अंदर तरोताजगी आ गई, और बाप ने कहा ये बेटा मेरा मर गया था, अब जिंदा है, ये मर गया था, ये खो गया था, ये मुरझा गया था, इसकी जिंदगी मुरझा गई थी, अब दोबारा से इसकी जिंदगी में बहाली और ताजगी आ गई है। और ताजगी कैसे आई है? जब वो बाप के पास वापस आया, रज्जू किया, बाप की तरफ उसने कदम बढ़ाए हैं, तब बाप ने उसकी जिंदगी को दोबारा से बहाल कर दी है। कितने हैं जिनकी जिंदगी में ताजगी की जरूरत है? नहीं भी आता तो खड़े करो, क्योंकि ताजगी का भी एक लेवल होता है। एक दफ़ा हम लेवल समझ ले कि सेकंड पे आते हैं, उसके बाद थर्ड लेवल आता है, फोर्थ आता है, फिफ्थ आता है, और हम इस कदर अपनी ज़िंदगी में ताजगी और सुकून को पाते जाते हैं, और वो सुकून और वो ताजगी हमारी ज़िंदगी को बदलती जाती है। आमीन। क्या लिखे? तौबा करो और रज्जू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए। तौबा करने से और खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारने से गुनाह मिटाए जाते हैं, और फिर खुदावंद की हजूरी से क्या होता है? ताजगी के दिन आते हैं। और ताजगी के लिए इंग्लिश में जो वर्ड किया गया यूज वो है रिफ्रेश। ताज़ा, रिफ्रेश हो जाते हैं, आप बहाल हो जाते हैं जब आप खुदावंद की हजूरी में आते हैं। कितने हैं जितने जो हर रोज़ खुदावंद की हजूरी में वक्त गुजारते हैं और उनको दुआ के बाद ताजगी फील होती है? अपने लिए तालियां, तालियां, जोरदार तालियां। यानी हम सब ने इस चीज को एक्सपीरियंस किया है, जब हम 1 या 2 घंटा खुदावंद की हजूरी में दुआ में वक्त गुजार लेते हैं तो हमारा बदन ताजगी को फील करता है, हमारी रूह अंदर से ताज़ा हो जाती है, क्योंकि हमारे गुनाह खुदावंद की हजूरी में मिटाए जाते हैं। खुदा हमारी ज़िंदगी में जो धुंधलाहट होती है, जो एक तरह से हमारी आंखें बंद हुई होती हैं, उनको खोलता है, तब हमारी ज़िंदगी में हमें नज़र आना शुरू होता है और हमारी ज़िंदगी में ताजगी आती है। और ताजगी 2 चीज़ों से आती है, वो है पहला तौबा, और दूसरे नंबर पे रजू लाना, और थर्ड चीज़ जो एक है वो है खुदा का कलाम। वो अपना कलाम नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा बख्शता है और उनको उनकी सारी बदकारी से, गुनाहों से रिहाई बख्शता है। आमीन। इसलिए हर रोज उसकी हजूरी में तौबा करना, हर रोज उसकी हजूरी में अपने गुनाहों का इकरार करना और उसकी हजूरी में वक्त गुजारना, उसके ताज़ा कलाम को मांगना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर हमारी ज़िंदगी में ताजगी आएगी, हमारी ज़िंदगी में सुकून आएगा। आमीन। इसलिए हर रोज़ हमें दुआ में, हर रोज़ उसके कलाम में वक्त गुजारने की ज़रूरत है, ताकि हमारी ज़िंदगी तरोताज़ा हो जाए। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको मदद करे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और इस कलाम पर गौर व खोज करेंगे, इस कलाम पर ध्यान करेंगे, इस कलाम पर तवज्जो करेंगे और खुदावंद से ताजगी को मांगेंगे। उससे कहेंगे खुदावंद मेरी ज़िंदगी में ताजगी ला, मेरी ज़िंदगी को तरोताज़ा